یسوع مسیح ناصری کے پاک مبارک فتح مند اور بزرگ نام میں تمام مقدسین کی سلامتی ہو، آمین۔ آئیے عزیزو، آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا تیسرا باب۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے ضرور آپ میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل۔ ہاللویہ، تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیزس۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا تیسرا باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت مقدسہ کی ہم تلاوت کو سنیں گے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے ضرور آپ میرے ساتھ یہ حوالہ نکالیں۔ نئے عہد نامہ کی یہ 4تھی انجیل ہے، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا تیسرا باب، چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 اور 6 کی ہم تلاوت کو سنیں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیزو، ابھی جو ہم نے تلاوت کو سنا بائبل مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے، آج ہم کچھ دیر کے لیے بپتسمہ کے تعلق سے سیکھیں گے۔ اس تلاوت میں سے جو پاک الفاظ ہم نے سنے، یہ پاک الفاظ جیزس کی زبان مبارکہ سے نکلے اور ڈائریکٹ جیزس نے یہ الفاظ نیکودیمس کے ساتھ بولے۔ نیکودیمس ایک ایسا شخص تھا جو یہودی تھا اور شریعت کا پابند تھا، اور شریعت کو اس نے اپنی زندگی میں لیا ہوا تھا اور وہ شریعت کے اوپر عمل کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ میں پوری شریعت کے اوپر عمل کروں۔ اور نیکودیمس ایک ایسا شخص تھا کہ جو آگے دوسروں کو شریعت سکھاتا تھا، یعنی شریعت کے اندر جیسے آج ہماری مسیحیت کے اندر پادری ہوتے ہیں، پاسٹرز ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، پریچر ہوتے ہیں، اسی طرح نیکودیمس بھی ایک ٹیچر تھا، شریعت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ لیکن جب نیکودیمس نے یسوع کے تعلق سے سنا، یسوع کے تعلق سے اس نے یسوع کے معجزات کو دیکھا، تو جیزس کی تعلیم کی طرف بڑا متاثر ہوتا ہے نیکودیمس۔ چاہے وہ استاد تھا، یہودیوں میں وہ ربی تھا، استاد تھا، تو بھی مسیح کی تعلیم کی طرف وہ توجہ کرتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ کچھ خاص ہے۔ چونکہ وہ استاد تھا، اپنے مذہب میں ٹیچر تھا، دینی ٹیچر تھا، دین کی تعلیم دیتا تھا، اس کا نام نیکودیمس تھا، اور وہ مسیح سے ملنا چاہتا تھا۔ لیکن کچھ اس کے دل میں ڈر بھی تھا کہ اگر میں مسیح کے پاس جاؤں گا تو یہودی تو مسیح یسوع کے خلاف ہے، لیکن میں نے مسیح یسوع کے اندر کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو مجھے شریعت میں نہیں ملی۔ میں نے مسیح یسوع کے بارے میں سنا، مجھے سکون ملا، لیکن میں یسوع سے ملنا چاہتا ہوں۔ چاہے میں استاد ہوں، چاہے میں ٹیچر ہوں، تو بھی میں جیزس کو ملنا چاہتا ہوں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے رات کی تاریکی میں یسوع کو ملنے کا فیصلہ کیا کہ اگر میں صبح سویرے یسوع کے پاس جاؤں گا تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ استاد ہو کر یسوع کے پاس جا رہا ہے سیکھنے کے لیے، یہ کیسا ہمارا ربی ہے۔ تو اس نے رات کا فیصلہ کیا کہ میں رات کو جیزس کے پاس جاؤں گا، جیزس سے ملوں گا، جیزس سے بات کروں گا۔ اور جب جیزس کے پاس نیکودیمس جاتا ہے تو جو باتیں نیکودیمس کرتا ہے وہ جسمانی باتیں ہوتی ہیں، جسم کی باتیں ہوتی ہیں،
लेकिन यीशु मसीह नासरी हमारा मुनज्जी, हमारा मसीहा निकोदिमस के साथ रूह की बात करता है, रूहानी बातें करता है। निकोदिमस कुछ और सवाल करता है, जीसस का कुछ और आंसर देता है। और इस सारे, अगर यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब आप शुरू से पढ़ें तो फिर आपको सारी स्टोरी का पता चलेगा। लेकिन हमारे पास चूंकि टाइम कम होता है, इसलिए हम शॉर्ट सीखेंगे। इस लेसन का सिर्फ खुलासा हम लेंगे इस चैप्टर का जो अभी हमने तलावत को सुना है। लिखा है, यीशु ने जवाब दिया निकोदिमस को कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये एक कॉन्सेप्ट बादशाहत में दाखिल होने का जीसस ने निकोदिमस को दिया। यीशु बादशाह ने निकोदिमस से कहा कि चाहे तू टीचर है, तू अपने मजहब के अंदर दीनी टीचर है, दीन को फैलाता है, लेकिन तो भी आज मैं तुझे एक नई बात बताऊंगा कि जब तक कोई शख्स बपतिस्मा ना ले, जब तक कोई शख्स पानी का बपतिस्मा ना ले, जब तक कोई शख्स पाक रूह को रिसीव ना अपनी जिंदगी में कर ले, वो बादशाहत के अंदर, बादशाही के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर वो शख्स नहीं जा सकता। हम मसीहों का ये ईमान है कि हमारे लिए मरने के बाद भी जिंदगी खुदा ने रखी हुई है। दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं है। इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, अपनी मामूल की जिंदगी गुजारता है, उसके बाद मर जाता है और उसकी स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि ऐसा नहीं है। एक शख्स था लाजर नाम का, जो बीमार रहता था और वो उसकी बॉडी के ऊपर नासूर बने हुए थे, बड़े बड़े जख्म और फोड़े थे। और वो एक ऐसा शख्स जो शाही काहिनों का लिबास पहनता था और अमीर तरीन शख्स था, उसके पास रहता था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो अमीर तरीन शख्स था वो शाही गिज़ा खाता था, खुराक खाता था, अच्छा फूड लेता था, और उसकी मेज से जो टुकड़े बचकर रह जाते थे, लाजर उन टुकड़ों को खाता था। लाजर के पास इतने सोर्स नहीं थे कि वो अच्छी गिज़ा खाए। मैं भी लाजर ये सोचता हो कि मैं एक रास्ते के अमल के अंदर से गुजर रहा हूँ, मैं गुनाहों से अपने आप को महफूज रखता हूँ, तो कैसे ये मेरी ज़िंदगी है कि मैं परेशानियों में रहता हूँ। और ये शख्स जो ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारता है, इसके पास सारी नेमतें हैं, इसके पास खुराक है, अच्छा खाना है, इसके पास शिफा है, तंदुरुस्ती है, शिफा नहीं तंदुरुस्ती है, ये तंदुरुस्त भी है और अच्छी गिज़ा भी खाता है, अच्छी पोशाक भी पहनता है, अच्छे महल में भी रहता है। तो मैं तो खुदा के साथ चलता हूँ, तो मेरी जिंदगी कैसी है? ना तो मुझे शिफा मिल रही है और ना मुझे अच्छा खाना मिल रहा है। तो लाजर तो भी वो साबित कदम रहा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब दोनों मर गए, लाजर भी और वो अमीर शख्स भी मर गया, तो कलाम मुकद्दस भी यूं लिखा है कि जो अमीर तरीन शख्स था, उसने चूंकि अपनी जिंदगी गुनाह के अंदर गुजारी, अपनी जिंदगी ऐशो इशरत के अंदर गुजारी, उसे कभी लाजर के ऊपर तरस ना आया कि मैं इसका इलाज करवा दूं या मैं इसे भी अपने साथ अच्छा खाना दूं। ऐसा नहीं उसके दिल में है, उसके दिल के अंदर दुनियादारी थी। वो जब मर गया, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो दोज़ख के अंदर, आग के अंदर चला गया। लेकिन लाजर के ताल्लुक से लिखा है कि लाजर जब मर गया तो वो अब्राहम की गोद में गया। हमें वहां से पता चलता है कि ये एक सच्चाई है कि मरने के बाद भी जिंदगी है। अगर हम ये ईमान नहीं रखते तो इसका मतलब है कि बाइबल मुकद्दस को हम नहीं मानते। अगर हमारा ये ईमान नहीं कि मरने के बाद पता नहीं की होना है, मरने के बाद शायद फिर नई जिंदगी, अब्दी जिंदगी मिलनी है या नहीं मिलनी, अगर ये हमारा ईमान
इस तरह का है, जिसका मतलब है हम बाइबल मुकद्दस के ऊपर ईमान नहीं रखते। बाइबल मुकद्दस ये खुदा का इल्हाम है, खुदा का सांस है, खुदा के पाक मुंह की पाक बातें हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ भी झूठ नहीं है। जैसे मैंने एक दिन पहले भी बताया था, कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल बदल चुकी है, तो मैंने शायद बताया था कि बाइबल कभी ना बदली थी, ना बदल सकती है। खुदा तो मिट्टी के खिलौनों की, हम जैसे इंसानों की कितनी फिक्र करता है, तो अपने कलाम की खुदा कितनी फिक्र करता है। जो कलाम बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने अपने कलाम को अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत दी है। खुदा कलाम को इज्जत देता है, खुदा कलाम के बराबर किसी को नहीं कर सकता। खुदा ने कलाम को हमेशा इज्जत दी, और फिर कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम ने जिस्म लिया, इसलिए कलाम कभी चेंज नहीं हो सकता। और कलाम यीशु है, कलाम कभी नहीं बदल सकता। यीशु ने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करेगा। इसलिए जो कलाम हमारे हाथों में है, मुख्तलिफ जुबानों में इसका तर्जुमा हुआ है। तो शुरूई के अंदर, तर्जुमे के अंदर जो हम देखते हैं, कुछ अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन मफहूम एक ही है, मतलब एक ही है। कलाम जो कुछ हमें सिखाता है, ये हम किसी भी जुबान में पढ़ेंगे, इसका खुलासा यही है कि खुदा मोहब्बत है, खुदा हमसे प्यार करता है। इसलिए कलाम कभी ना बदला था, ना कलाम बदल सकता है, बल्कि कलाम जब हमारी जिंदगियों में आता है तो कलाम हमें बदलता है, कलाम हमें चेंज करता है, कलाम तो हमारे हालात में बदलता है, कलाम हमें मुकम्मल तौर पर नई जगह पर ले आता है। कलाम खुदा में लिखा है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। कलाम नया करता है। जब कलाम पतरस के पास आया तो पतरस से कलाम ने कहा कि मुझे तेरी बॉट चाहिए, मुझे तेरी कश्ती चाहिए पतरस। तो कश्ती जब पतरस ने दे दी तो उसके बाद पतरस की स्टोरी भी कलाम ने बदली। यीशु ने पतरस की जिंदगी को भी चेंज किया। हम अगर चेंज नहीं होते, इसका मतलब है कि हम पतरस की तरह अपनी जिंदगी में यीशु को आने नहीं देते, अपनी कश्ती यीशु को देते नहीं है, जिसकी वजह से हमारे हालात नहीं बदलते। कलाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलाम में कोई कमी नहीं है, कलाम के अंदर बड़ी कुव्वत और ताकत है। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि मरने के बाद भी जिंदगी है। आप और मैं, हम मसीही उस जिंदगी के लिए भाग दौड़ करते हैं। आप और मैं, हम उस जिंदगी के लिए जो मरने के बाद है, जो अबदी जिंदगी है, जो कभी ना खत्म होगी, जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है। आप और मैं, हम उस जिंदगी के लिए स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। क्योंकि ईमानदार जो बैठी हुआ है, प्लीज मुड़ा है, ईमानदार जो शख्स है, याद रखिएगा इस बात को, ईमानदार शख्स जो है वो समझ जाता है कि मेरी जिंदगी थोड़ी है, मुख्तसर है, खत्म हो जाएगी। मर्दे खुदा मूसा को कौन कौन जानता है? तकरीबन हम सब जानते हैं। और मर्दे खुदा मूसा अपने ज़बूर में कहते हैं कि हमारी जिंदगी थोड़ी है, घास के फूल की तरह है। कईयों ने तो घास का फूल देखे नहीं होगा, क्योंकि वो इतना रहता नहीं है, जैसे धूप निकलती है वो खत्म हो जाता है। हमारी जिंदगी, मर्दे खुदा मूसा कहता है, बुखरात की मानित है। जैसे बादल आते हैं, कभी आपने देखा कोई 2 माह बादल बने रहे? ऐसा नहीं होता। बादल आते जरूर है, कुछ देर के बाद खत्म हो जाते हैं, उनका कलर्स बदलता रहता है, चेंज होते रहते हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी थोड़ी है, मुख्तसर है, ये खत्म हो जाती है। चाहे लाजर की तरह हम परेशानियों में हैं, मुसीबतों में हैं, हमने कभी बुड़बुड़ाना नहीं है। खुदा हम पर निगाह करता है। मैं पढ़ रहा था बाइबल मुकद्दस में कि सदरक, मिस्र, अब्दनगो को जब आग की भट्टी में डाला, अभी उन्हें डाला नहीं था, अभी उन्होंने आग की भट्टी में जाना था, तो सदरक और मिस्र और अब्दनगो ने बादशाह से कहा, बादशाह हमारा खुदा हमको बचाएगा। लेकिन आगे लिखे है, गौर से कभी पढ़िएगा, अगर वो ना भी बचाए तो भी वो हमारा जिंदा खुदा है। कितनी बड़ी बात है।
मैं उठो मंगना है जिथो राजे भी मंग, ओ देवे या ना देवे ओदी रजा च रहना है। मुबारक है वो शख्स जो खुदा में खुश रहता है, खुदा उससे प्यार करता है। हमें खुदा ब्लेस करने की कुदरत रखता है, लेकिन खुदा का काम करने का एक अपना तरीका है। उस तरीके को कोई नबी, कोई पैगंबर आज तक नहीं समझ सका। खुदा का काम करने का एक अपना खास तरीका है, क्योंकि खुदा के पास बॉडी नहीं है। जिसके पास बॉडी है उसकी सोचें भी इंसान की अंदर जिस्मानी है। खुदा चूंकि बॉडी नहीं रखता, जिस्म नहीं रखता, इसलिए खुदा के पास रूहानी सोचें हैं, और खुदा हमारे लिए भलाई की सोचें रखता है। इसलिए अजीजों, ये सारी बात इसलिए मैंने आपको बताई कि मरने के बाद यकीनन हमेशा की जिंदगी है, लेकिन उस शख्स को मिलेगी जिसने अपने गुनाहों का इकरार किया है, जिसने पानी का बपतिस्मा लिया है, जिसने पाक रूह को रिसीव किया है। मरने के बाद वो शख्स बादशाहत में शामिल होगा। आज सारे इस बात को अपने दिल में रख लें, मरने के बाद ईमानदार कभी भी नहीं मरते। दुनिया की नजर में वो मर जाते हैं, वो मरते नहीं है। जिन्हें हम कहते हैं रूहां दा प्यार, ये अल्फाज में रूहों की मोहब्बत, मरने के बाद ईमानदार की जो रूह है वो मसीह के पास चले जाती है। मसीह भी एक पाक रूह है, और ईमानदार का रूह मसीह के पास चले जाता है। फिर वो ईमानदार का जो रूह है वो मसीह की रूह के साथ रहता है। रूह की शक्लो शबी कैसी होगी? कभी आपने गौर किया कैसी रूह दिखती होगी? आपकी रूह कैसे दिखती है जी? आपकी रूह कैसे दिखती है? कभी आपने गौर किया हो कि मेरे अंदर खुदा ने दम फूंका है, वो कैसा होगा? दम मेरे अंदर है भी कि नहीं है? कभी ये ख्याल आपके अंदर आए कि मेरे अंदर दम है भी कि नहीं है? और इस बात का अंदाजा हमें तब होता है जब एक मैयत पड़ी होती है, हाथ पांव सब कुछ वहां पर पड़ा होता है, लेकिन वो हाथ पांव खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो हरकत नहीं करते। वो शख्स अगर तंदुरुस्ती की हालत में उसकी डेथ हुई है और वो पड़ा हुआ है और वो चल फिर नहीं रहा, कुछ घंटे पहले वो चल भी रहा था, बोल भी रहा था, अब ना वो बोलता है, ना वो देखता है, ना वो स्माइल करता है, ना वो रोता है। उसके जज्बात कहां पर गए? इसका मतलब है अब उसके अंदर से रूह निकल चुका है, और रूह की वजह से आप और मैं, हम अपने अंदर फीलिंग्स को रखते हैं, जज्बात रखते हैं। बेसिकली ये जज्बात, ये इमोशंस, ये फीलिंग्स, ये हमारी रूह का हिस्सा है। और ये भी हमें बाइबल सिखाती है कि पाक रूह आहें भर भर कर हमारे लिए शिफायत करता है। इसका मतलब है रूह के अंदर भी फीलिंग्स होती है, जज्बात पाए जाते हैं। यीशु मसीह नासरी ने निकोदेमुस से कहा कि अगर तू अब्दी जिंदगी में जाना चाहता है, बादशाहत में शामिल होना चाहता है, तो फिर तुझको पानी से बपतिस्मा लेना होगा। दुनिया की नजर में शायद एक ये छोटी सी रस्म है, लेकिन मैं समझता हूं ईमानदार के लिए उस पानी में से जिसमें उस वक्त खुदा का रूह मौजूद होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा का रूह पानियों के ऊपर जुम्बिश करता था, तो उस वक्त उस पानी के अंदर खुदा का रूह मौजूद होता है, जीसस मौजूद होता है। यीशु मसीह नासरी ने भी बपतिस्मा लिया। जब जीसस ने बपतिस्मा लिया तो बाइबल में लिखा है कि खुदा का रूह जीसस के ऊपर। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इससे पहले खुदा का रूह जीसस के अंदर नहीं था। असल में यूहन्ना को साइन देना था। यूहन्ना को कहा गया था कि जिसके ऊपर खुदा का रूह उतरते तू देखे वो खुदा का बेटा होगा। इसलिए जीसस के ऊपर कबूतर की सूरत में खुदा का रूह नाजिल होता है। और ये बात यीशु ने निकोदेमुस से सिखाई कि तुझे भी, तू चाहे टीचर है, चाहे तू प्रीचर है, चाहे तू मजहबी एक मुअल्लिम है, चाहे तू आलिम है, तो अभी तुझे पानी से बपतिस्मा लेना जरूर है। अगर तू बपतिस्मा नहीं लेगा तो तुझे अब्दी जिंदगी नहीं मिलेगी। ये नए साल के आगाज में ये मैसेज रात को खुदा ने मेरे दिल में डाला, और आपकी नजर इस मैसेज को इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि आज से हम सब ने, अगर किसी शख्स ने बपतिस्मा नहीं लिया,
آج سے اس نے اپنے دل کی تیاری کرنی ہے. اس 2025 میں ہم ضرور یہ بپتسمے کی جو پاک رسم ہے اس میں شامل ہوں گے. ہر وہ بیٹی، ہر وہ بیٹا جس نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، اس شخص نے اور اس سال میں پاک روح میں گہرا ہونا ہے. لیکن اگر کسی نے بپتسمہ نہیں لیا تو ہم اس سال میں کچھ ماہ کے بعد، میں بھی 6 ماہ بعد، 5 ماہ بعد، ہم گرمیوں کے موسم میں بپتسمہ ضرور ان بیٹیوں اور بیٹوں کو صلیب کے نیچے لے کر آئیں گے جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا. ان کے ہم نام لکھیں گے اور پراپرلی آج سے ان بیٹیوں بیٹوں نے اپنے آپ کو اسپیشلی تیار کرنا ہے. کئی دفعہ ہم جلد بازی کے اندر یہ فیصلہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بپتسمہ لینے کے بعد بھی ہماری روشیں نہیں بدلتی، ہماری زندگی چینج نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ایک جذباتی ہو کر یہ فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے کئی ماہ پہلے آپ کی نظر اس میسج کو کیا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح ناصری کی یہ ٹیچنگ ہے، اگر آپ نے بپتسمہ نہیں لیا تو بادشاہی ابدی زندگی آپ کے لیے ابھی تک نہیں ہے. بپتسمہ لینا بڑا ضروری ہے. کئی دفعہ لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ وہ جو ڈاکو تھا، یسوع کے دہنی ہاتھ بائیں ہاتھ لٹکے ہوئے تھے ڈاکو، تو ایک ڈاکو یسوع کو تانا دیتا ہے، ایک ڈاکو یسوع پر ایمان لے آتا ہے، تو یسوع اسے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جیسس نے کہا تھا نا. اور کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس ڈاکو نے تو بپتسمہ نہیں تھا لیا تو ابھی وہ ابدی زندگی میں شامل ہو گیا. اصل میں وہاں پر بپتسمہ لینے کا ٹائم نہیں تھا، تو آپ کو تو ٹائم دیا جا رہا ہے. وہاں پر حوض کوئی نہیں تھا، ورنہ وہاں پر اس کا بپتسمہ بیسیکلی اس شخص کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بپتسمہ ہوا تھا. اس نے جب یسوع پر وہ ایمان لے کر آیا تو اس کا بپتسمہ پانی کے ساتھ نہیں بلکہ یسوع کے لہو کے ساتھ ہو چکا تھا. وہ شخص یسوع کے لہو میں ڈپ ہو چکا تھا. یسوع کے جلال کے لیے تالی بجائے، صرف یسوع کے جلال کے لیے. بیسیکلی وہ شخص وہاں پر ماحول ایسا تھا کہ جو ہی اس نے جیزس پر ایمان وہ شخص لے کر آیا، وہ ڈاکو، تو یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یعنی یسوع کے لہو میں وہ شخص آ چکا تھا. آج ہمارے لیے پانی موجود ہے، آج ہمارے لیے وقت موجود ہے. اس لیے ضرور آج سے آپ اپنی زندگی پر غور کریں. آپ ایک ڈائری لیں، اس کے اندر آپ لکھیں آپ کی زندگی میں جو پرابلمز چل رہی ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے لکھنا ہے اپنی وہ ڈائری کے اندر، آپ نے لکھنا ہے میری زندگی میں کون کون سے گناہ ہیں. ایک سائڈ پر آپ نے لکھنا ہے. پھر دوسرے پیج پر آپ نے لکھنا ہے آپ کی زندگی میں جو بری روشیں ہیں ان کے تعلق سے بھی آپ نے لکھنا ہے. تیسرے پیج پر آپ نے لکھنا آپ کی زندگی میں کون کون سی بیماریاں ہیں وہ بھی آپ نے لکھنی ہے. یہ آپ نے 3 پیج بنانے ہیں. اور جب آپ ان کو پڑھیں گے پھر آپ کے دل میں پاک روح ڈالے گا کہ یہ بری عادت تیرے اندر ہے. پھر اس پر آپ نے کام کرنا ہے. ہر روز اس ڈائری کو آپ نے دعا میں رکھنا ہے. جیزس میں نے اقرار کیا، میں نے لکھا ہے میری زندگی میں یہ پرابلم ہے، یہ بری عادت میری زندگی سے جاتی نہیں ہے، میری زندگی کے اندر یہ گناہ ہے، یہ میری جان نہیں چھوڑتا. میں نے اس ڈائری میں لکھا ہے، تو دیکھتا ہے مجھے چینج کر. تو یہ ناپاک عادت مجھے ناپاک کرتی ہے. میں نے اس ڈائری کے اندر لکھا ہے، میں نے کسی کو نہیں دکھایا، میں نے پاسٹر کو بھی نہیں دکھایا. یسوع تو جانتا ہے. تو میری زندگی سے اس بری عادت کو نکال دے. جو ہی آپ دعا کریں گے آپ کی بری عادتیں، بری آپ کی روشیں، آپ کی بری ادائیں، سارا کچھ جاتا رہے گا. اور جو تیسرے پیج پر آپ نے اپنی بیماریوں کے لکھا ہے نا، میڈیسن کے بغیر، میں دعوے سے کہتا ہوں، یسوع کے نام سے دعویٰ کرتا ہوں، میڈیسن لینے کے بغیر آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں. یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے ایسا ہوگا. ہر طرح کی آپ کی ڈیزیز یسوع نام سے جاتی رہے گی. میں نے یہ سیکھا کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں، بیماریاں پائی جاتی ہیں جو ہمارے گناہ کے سبب سے ہماری باڈی میں آتی ہیں. یسوع نے کہا میں تجھے شفا ہو چکی ہے،
जा फिर तू गुनाह ना करना। जीसस ने कई मर्तबा ये अल्फाज बोले। अगर तूने शिफा पाली है तो इस शिफा में तू कायम कैसे रह सकता है? जा फिर गुनाह ना करना। आप जरूर लिखें, फिर जो जो आपकी बुरी आदतें खत्म होती जाए आप उस पर लाइन लगाते जाएं कि ये बुरी आदतें मेरे अंदर से निकलती गई हैं। फिर आप बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे ये मैसेज खुदा ने दिया कि हमने कलीसिया की तैयारी करवानी है। जल्दबाजी में या जज्बातीपन में बपतिस्मा फायदे का सबब नहीं बनता, क्योंकि पुरानी आदतें तो अभी तक अंदर है और पुरानी आदतें नो डाउट यीशु एक लम्हा में खत्म करने की कुदरत रखता है, लेकिन कुछ ऐसी आदतें हमारे बदन के अंदर होती हैं, उन्हें खत्म होने में टाइम की जरूरत होती है। टाइम हम देते नहीं, जज्बाती होकर कहते मैंने बपतिस्मा, भाई साहब आज ही मैंने बपतिस्मा दो। तो भाई साहब देखो तो हाले हौज भी नहीं, अभी तो पानी भी नहीं है, ठंड भी बहुत ज्यादा है। आपने आज से प्रेयर करनी, जीसस मेरे अंदर पाकीज़गी पैदा कर, और जो आपकी कमियां कुछ प्रॉब्लम्स रह जाएंगी जिस दिन बपतिस्मा लेंगे वो कमियां भी जाती रहेंगी यीशु के नाम से। आप जरूर आज से मसीह की टीचिंग को अपनी जिंदगी में लें, इसे दुआ में रखें और कहा करें खुदावन मैंने बपतिस्मा लेना है, क्योंकि मैंने सीखा है अगर एक उस्ताद निकोदेमस जो रब्बी था, आलम था, मुअल्लम था, उसने शरीयत को पढ़ा, यहोवा का वो नाम लेता था, अगर वो बादशाही के अंदर नहीं जा सकता तो बपतिस्मा तो मैंने भी नहीं दिया, तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगी? इसलिए मुझे बपतिस्मा लेना है। तो मुझे जीसस तू बपतिस्मा के लिए तैयार कर। जैसे पानी का बपतिस्मा आप लेंगे, पाक रूह का बपतिस्मा आपको इनाम में मिलेगा। होली स्पिरिट अगर पहले भी पाक रूह आपके अंदर काम करता है बहुत अच्छा है, जब आप बपतिस्मा लेंगे पानी का, पाक रूह नए तौर पर आपके अंदर काम करेगा, नए तौर पर पाक रूह आपको यूज करेगा। शायद पाक रूह अभी आपके साथ है, जो ही आप पानी का बपतिस्मा लेंगे पाक रूह आपके अंदर आ जाएगा, फिर आपके साथ पाक रूह टाइम स्पेंड करेगा। आप और मैं, हम सब इंसान बराबर है, ये कोई बात नहीं कि पादरी थोड़ा अफजल है, कान तो भी दो ही नहीं। कभी आपने देखा किसी पास्टर की 3-4 आंखें बनी हो, आइज, कान, सब कुछ, हम सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं, बड़ा सिर्फ यीशु है, बड़ा सिर्फ यीशु है, इसलिए पाक भी यीशु है। आप और मैं इंसान होते हुए सब कमजोर है। आज से हमने अपनी कमजोरियों का इकरार करना है। मेरा ईमान है, यीशु ने उसे कहा निकोदेमस से, जो जिस्म से पैदा हुआ है, गौर करेंगे, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ये अल्फाज हमें ये सिखाते हैं कि जो शख्स जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ है उसके अंदर जिस्मानी ख्वाहिशें, जिस्मानी सोचें पाई जाती हैं, लेकिन जो शख्स पाक रूह से पैदा हो जाता है, यीशु से पैदा हो जाता है, उसके अंदर यीशु वाली सोचें आ जाती हैं, यीशु वाले जज्बात आ जाती हैं। जीसस के अंदर जो फीलिंग्स पाई जाती है उस शख्स के अंदर वो फीलिंग्स आ जाती है। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और कहें, हर शख्स कहेगा खुदावन मैं जिस्म से तो पैदा हुआ हूँ, मुझे रूह से भी पैदा होना है, मैं चाहता हूँ मैं रूह से पैदा हो जाऊँ। जितने ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं आप भी अपनी आंखें बंद करें, कहें जीसस मैं रूह से पैदा होना चाहती हूँ, मैं रूह से पैदा होना चाहता हूँ। मैंने ये देखा, मैंने ये जाना कि जब तक मैं रूह से नहीं पैदा होऊंगा मैं अबदी जिंदगी नहीं पा सकता। आज मैंने सीखा पानी का बपतिस्मा अज़हद जरूरी है, और कंप्लीट बपतिस्मा जो बाइबल हमें सिखाती है, हमने प्रॉपर बालों से लेकर पांव के तलवे तक जब हम पानी में डिप होती हैं तो हमारी पुरानी इंसानियत पानी में दफन हो जाती है और हम रूह में जिंदा निकलते हैं। जैसे कि बेबी पैदा होता है इसी तरह हम मसीह में पैदा हो जाते हैं। आज से हर शख्स ये दुआ करेगा, खुदावंद तू मुझे बपतिस्मा लेने के लिए तैयार कर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सब आइज़ क्लोज करेंगे और हम दुआ करेंगे। कुछ
से कहेंगे यीशु तू, 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 यीशु तू मेरे जीवन को तू, यीशु तू मेरे जीवन को तू, यीशु तू, तालियां, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू मेरे जीवन को 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 तू, यीशु तू। हालेलुया, तालियां सब बजाएंगे। मैं हूँ बेघर की तरह, खाली खाली घर की तरह, मुश्किलें मेरे करती, मुश्किलें यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू मेरे जीवन को तू, यीशु तू मेरे जीवन को तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू। आमीन। अब खुदा एक एक जान को बड़ी बरकत दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। अब खुदा आज का खूबसूरत कलाम हमारी जिंदगियों को बदले, हमारी रूहों को पाक और साफ करे, हमारे दिलों में बैठे। अब खुदा इस कलाम के वसीले से हम बरकत पर बरकत पाएं और इस साल में अब खुदा हमारे लिए ढेरों खुशियाँ और बरकतें आए। अब खुदा हम हर परेशानी और दुख तकलीफ से दूर रहें। अब्बा खुदा हमारे भाई को बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करे। बच्चों पर तेरा बड़ा रहम मांगते हैं। अब्बा खुदा बच्चों पर तेरा बड़ा करम आए, क्योंकि अब्बा खुदा ये बड़े होकर तेरे नूर में चलने वाले बन जाएंगे। अब्बा खुदा इनको इल्म हासिल करने की तौफीक देना। अब्बा खुदा जितनी जाने झुकी हैं इनको भी बड़ी बरकत दे। आए तो खाली हाथ है, लेकिन जब जाएं तो तेरे कलाम की बरकतों से भर कर जाए और हमेशा अब्बा खुदा तेरे घर में आने बन जाए। इनकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को दूर करना। हम सब की छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, मांगते जय कदुस और जलाली नाम में, आमीन। ये इसलिए सबके सामने, बेटों को भी ऐसे मैंने पहनाए थे कार्ड, गिल साहब ने इसलिए सबके सामने और स्पेशल उनकी मिसेस के सामने हमने पहनाया है ताकि वो कभी शिकवा ना करे कि कार्ड कितों आ गया मेरे बंदे दे गले च। थैंक यू जीसस। ये जी जी बेटी वायर इसकी और ले लिया थोड़ी सी ना, वायर इसकी खींची भी हो रहा है और नीचे उतारिए पैर से गिर जाएगा इसका। माइक ऑन सही है जी। बच्चे अभी स्टार्ट करेंगे और सारे गौर से देखेंगे। ये मैंने तो अभी तक नहीं देखा, लेकिन बच्चे आज करेंगे तो मैं भी आपके साथ देखूंगा। प्लीज सोनिया, सोनिया बैरी होगी, आवाज नहीं आ रही। एक तो रोटियां पका पका के भांडे मांज मांज के मेरे तो हत्थां दी उंगलियां पीड़ होन लग गई, एक तो मैडम साहिबा सुकून नहीं लैंदी, मैनूं तो लगदा मैनूं मार के छड्डेगी। हाँ जी मैडम। मारना चाहती मैडम जी, तुसी तो क्या आके मेरा गला दबा, तो मैं आके दबाता। मैंने गले का नहीं पाऊंगा, कह चलो पाऊं दबाओ। एक तो ना दे हुण पैर दबाओ। बाहर देखो कौन आया। हाँ जी, कितने ना मिलना जी? तुम्हारी मैडम से मिलना है क्या? हमने तुम्हारे से मिलना है। मेरे नहीं मिलना। मैडम जी कह रहे ताड़े ना मिलना है। अपने अपने नाम दसो। मेरा नाम जैनिसा, मेरा नाम अनमोल, मेरा नाम जैसिका। मैडम जी कह रहे ने कदा ना पिज़्ज़ा, कदा ना पिज़्ज़ा ते कदा ना केला। अपने सही नाम दसो
तुम्हें सईदा नाम बताया, तुम्हारे कानों में मैल फंसी है। इस नवाबजादी का बार बार नाम बताओ। मेरा नाम जेनिसा। मेरा नाम अनमोल है। मेरा नाम जेसिका। मैडम जी, एक का नाम पिज़्ज़ा, एक का नाम पिज़्ज़ा ते एक का नाम केला है। सही नाम पूछना नहीं तो तेरे नौकरी से निकाल दूंगी। उसी की मैं नौकरी च कटवाना है। असी की तेरी नौकरी च कटवा के झाड़ू पर चलवाना है। बार बार इसको नाम बताओ। मेरा नाम जेनिसा। मेरा नाम अनमोल है। मेरा नाम जेसिका। मैडम जी, एक का नाम पिज़्ज़ा, एक का नाम पिज़्ज़ा, एक का नाम केला है। ऐसा तो नहीं, अनमोल और जेसिका और जेनिसा इंज दे कोई नाम है। जाओ तब के दो बहन को अंदर लेकर तमीज से लेके आना। ये क्या कर रही हो मैडम जी? तुसी इधर क्या रन कमीज तो कच के अंदर ले आ। मैं कमीज है, तमीज से क्या है? एक तो इतना दे काम भी नहीं मुकते। मैडम जी, मैंने अपने भूखिया दोस्तों ने पूछ लो उन्होंने कुछ खाना पीना है कि नहीं। तूने मेरी दोस्तों को भूखी कहा? क्या है? जाकर तमीज से पूछ लो क्या खाना है। की खाना पसंद करोगे? शॉपिंग पे जाने हैं। मिनियन वाटर और क्यों दावे? इसका मतलब साफ पानी। साफ पानी मतलब हेलो। छी, इतना गंदा पानी हम नहीं पियेंगे। तो मैं साफ पानी लाने के लिए कहा था। तो सीधे कह सानू पानी ले देते, मैं तानू पकोड़े वाला पानी तानू मैं दे देता। हमने साफ पानी कहा था, तुम गंदा पानी ला के दे रही हो। तानू फिल्टर तो मैं ले आ देती। तुम्हारी इतनी गंदी नौकरानी जब तक ये नहीं आ जाएगी हम नहीं वापस आएंगे। रुक तो जाओ। होते गईया भुखिया दोस्त। मैं कितनी खुशी चली ताड़िया भुखिया दोस्त आ गई तो मैंने खुशी ना चढ़े। जाओ तो मैं नौकरी से निकाल दिया, मैं सोने जा रही। होते गईया भुखिया दोस्त। गाइस, अब मैं नए नए घरों में जाऊंगी, नए नए स्यापे डालूंगी। ये था हमारा छोटा सा फनी टैग। पाक खुदावन, तेरी मर्जी है कि तेरे घर में आए पाक खुदा, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले के लिए पाक खुदा। अभी से पाक खुदा मैं अपने आप को तेरे हाथ रखती हूँ। पाक खुदा मैं अपने गुनाहों का इकरार करती, मेरे गुनाह माफ़ करना। पाक खुदा मुझे पाक बख्शा सुने। पाक खुदा अभी से मैं पाक खुदा जितने लोग आ चुके, जितने लोग आने का इरादा रखते, पाक खुदा नाम बेनाम को बरकत देना। पाक खुदा अभी से पाक खुदा हमें छूना ब्लास करना। पाक खुदा जी तो ये पाक खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। पाक खुदा अभी जो इबादत हुई है पाक खुदा, इसमें तेरा शुक्र करती हूँ। पाक खुदा तूने हमें संभाले रखा। पाक खुदा आगे भी हमें संभाले रखना। पाक खुदा इस वक्त के लिए पाक खुदा जो सबसे बड़ा पाक खुदा कलाम, पाक कलाम तू ये पाक खुदा तूने हमें रखा। पाक खुदा ये जो कलाम हमारे लिए था पाक खुदा हम अपने दिलों पर नक्श कर दें। पाक खुदा आगे भी हम ये कलाम को फैला सके। पाक खुदा इस कलाम के वसीला से बरकत पाए। पाक खुदा तूने हमें बहुत ज़्यादा बरकत दी है। पाक खुदा उसके लिए तेरा शुक्र करती हूँ। पाक खुदा अपनी निजात चर्च जो तूने हमें दिया पाक खुदा मुहैया किया, इसके लिए पाक खुदा हम तेरा शुक्र करती हूँ। आंटी के लिए, भाई के लिए बड़ी बरकत चाहती हूँ। पाक खुदा अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इनको इस्तेमाल करना, और ज़्यादा बनाना, आग की शोला की माध्यम उनका इस्तेमाल करना। पाक खुदा सर से लेकर पाँव के तलवे तक सुना और बड़ी बरकत देना। पाक खुदा जहाँ जहाँ जाए तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाए, और तेरे कलाम के वसीला से वहाँ आग के शोला की मानव का इस्तेमाल करना। पाक खुदा बड़ी बरकत देना। पाक खुदा मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए पाक खुदा बड़ी बरकत मांगती हूँ। पाक खुदा निगरान के पाक खुदा छूना ब्लास करना। पाक खुदा 10 महीने तो पाक खुदा में संभाले रखता है। पाक खुदा आज इस मौसम में भी तूने पाक खुदा तेरी मर्जी है कि तेरे घर में आया। पाक खुदा इस मौसम में भी तूने हमें संभाले रखा। पाक खुदा मेरी पाक खुदा में आगे भी संभालना। पाक खुदा मांग लेती पाक खुदा तेरे उसने रोटी ली और उस रोटी को शुक्र करके तोड़ा और अपने शागिर्दों को दिया और उन्हें कहा कि इस रोटी में से खाओ, ये मेरे बदन के मुशाबे है। इसी तरह जीसस ने शीरे का प्याला लिया और इस प्याला को जीसस ने शुक्र करके अपने शागिर्दों को दिया और उन्हें कहा कि इसे पियो, ये प्याला, ये शीरा मेरे खून में नया अहद है। मैंने बताया था
पुराने अहद के अंदर लिखा था कि खून को नहीं, और हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सिस्टर प्लीज जरा बैठकर, चाहे मेरी बाजी, लहू दिए धारा जदो वगियां गाएंगी। लहू दिया धारा जदो वगियां सलीब तो वगियां शिफा दिया नेरा वगियां सलीब तो पाप धुल गए शिफावा मिल गया, पाप धुल गए शिफावा मिल गया तेरी सलीब तो लहू दिया धारा जद वगिया सलीब तो उस लहू दा दीवा बलिया बलिया पहाड़ां ते ओदी शिफा दा मी वसिया वसिया बीमारां ते यीशु बनिया सहारा जगदा, यीशु बनिया सहारा जगदा ए जान ले लहू दिया धारा सलीब तो गम दे जोर टूटे रोगियां दे रोग मुक्ति अब दी शिफावा मिलिया, गम दे जोर टूटे रोगियां दे रोग मुक्ति अब दी शिफावा मिलिया, दुखा तो नजात मिली अब दी हयात मिली जिंदगी च आया खुशियां यीशु बनिया सहारा जगदा, यीशु बनिया सहारा जगदा ए जान ले लहू दिया धारा जदो वगिया सलीब तो। हालेलुया। अभी सारे भाई लोग आगे आएंगे। बेटियों में से अगर कोई रह गया है बाद में जरूर हम लोग पाक मेजबानी शामिल करेंगे। और मेरी दरख्वास्त है भाई लोग जो बाहर है वो भी सारे अंदर आ जाएंगे। हालेलुया। सहारा जगदा ए जान ले लहू दिया धारा जद वगिया सलीब तो वगिया शिफा दिया मेरा वगिया सलीब पाप धुल गए शिफावा मिल गया, पाप धुल गए शिफावा मिल गया तेरी सलीब तो लहू दिया धारा जदो वगिया सलीब तो लहू दिया धारा जदो वगिया। खुदा की बंदी अपनी फैमिली में से आती थी चर्च में। इनके खानदान में से और कोई चर्च नहीं आता था, लेकिन खुदा की बंदी ने दिल यीशु के साथ लगाया और वो रूटीन से चर्च में आना शुरू हो गई। एक दिन हुआ कि खुदा ने जो बच्चे दिए हैं खुदा उन्हीं चर्च में लेकर आया। फिर वक्त गुजरता गया, इन्होंने दुआएं करवाई खुदा के खादमों से और खुद भी बाजी बहुत दुआ में ठहरते हैं। आज
ان کا ہسبینڈ بھی ان کے ساتھ چرچ میں آ چکے ہیں اور ابھی وہ روٹین کے ساتھ چرچ آتے ہیں. جس طرح انکل نے ابھی آگے آ کر ایک بات کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو پش کیا کریں, انہیں ضرور کہا کریں, لیکن اگر آپ خود ہی چرچ نہیں آتے تو آپ کیسے گھر والوں کو ساتھ لا سکتے ہیں؟ اپنے خاندان میں سے سب سے پہلے سسٹر سائکا ہی عبدی نجات چرچ کا حصہ بنی, لیکن آہستہ آہستہ باجی نے اپنی پوری فیملی کو جیزس کی قدموں میں باجی لے کر آنے کا سبب بنی. اس لیے ضرور آپ بھی اپنے گھر والوں کو بولیں کہ ہمارے ساتھ چرچ چلے. تھینک یو باجی, خدا بڑی برکت دے. باجی کی زندگی میں بڑی گواہیاں بھی ہیں. ابھی میں نے آگے کھڑا کیا تو انہیں, تو کل ضرور باجی ایک گواہی اپنی گواہیوں میں سے شیئر کیجئے گا. ان کی زندگی گواہیوں سے بھری. اور جیسے انکل نے بھی بولا کہ ضرور آپ گھر والوں کو اپنے ساتھ بچوں کو بھی پوش کریں, زبردستی نہیں کرنی, زبردستی سے کوئی نہیں آئے گا. باجی نے نسخہ استعمال کیا, وہ دعا کرتی رہی اور دعا کرواتی رہی اور پیار کے ساتھ اپنی فیملی کو کہتی رہی. آج ان کی بیٹی, ان کا بیٹا, ان کی فیملی, ان کا ہسبینڈ خدا کی ہیکل میں ہے. تو یہ کیسے ہوا کہ وہ خود آتی رہی, ہمت نہیں سکھائی. آج آپ اپنی زندگی میں اس بات کو لے لیں کہ اس سال میں آپ کی پوری فیملی نے یسوع کے قدموں میں آنا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جب یسوع آئے تو آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ اڑ کر یسوع کے ساتھ. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو پوری فیملی کوشش کریں, ان کے لیے دعائیں کریں. ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں, محلے والے واسطے دعا, اور پاکستان واسطے دعا, ہاسپٹل دے جڑے ویچنے وہ سانو نہیں پتا کیوں بیماری سے پھنسے نے, ان کے لیے دعا. بہت اچھا ہے دعا کرنا, لیکن اپنی فیملی کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی, اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنی. ایسا کبھی نہ ہو کہ جیزس آئے تو آپ اڑ کے استقبال یسوع کا کریں, لیکن آپ کی جو فیملی ہے وہ اڑنے کی کوشش کریں لیکن اڑے ہی نہ جائے. بات جو کہ ماما تے اڑ گئی یسوع دے استقبال, ساڈے کو نہیں اڑے جائے, شاید اسی موٹے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں. ان کے اندر کلام نہیں ہے, کلام سے ہمیں پار مل جائے گی. تو اس لیے ضرور. اور سیکنڈ میں بولنا چاہتا ہوں کہ اس سال کسی نے چرچ سے چھٹی نہیں کرنی. گلسا میری آواز باہر تک پہنچ رہی ہے. اس سال میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ہم نے, خداوند کا شکر ہے, بے شمار گفٹ خدا نے پرووائڈ کیے اور چرچ میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے. میں آج یہ اعلانیہ کہہ رہا ہوں, اس سال میں آج سے, کیونکہ یہ سال کا آج پہلے سنڈے تھا, کل منڈے ہے, اس سال میں سنڈے منڈے کی باتوں میں جو شخص روٹین سے آتا رہے گا, دسمبر کے مہینے میں, سال کے آخر میں, بہن ریکارڈ بھی کر رہی ہے اس لیے یہ بات ہمیشہ زندہ رہے گی. اس سال کے آخر میں ہم اس فیملی کو آگے بلائیں گے اور انہیں بھی گفٹ دیں گے. اس فیملی کو جو اگر سارے ہی آتے رہیں گے سب کو گفٹ ملے گا. ہم پوری فیملی کو آگے بلائیں گے. آپ اس بات سے پریشان نہ ہو کہ شاید گفٹ ہو کے جائیں گے, گفٹ بہت زیادہ ہے. اگر سارے ہی آتے رہیں گے آپ کو ہم آگے بلائیں گے. اس ویڈیو کو آپ ریکارڈ اسی طرح رکھیے گا اور ساتھ میں جو انتظامیہ وہ مجھے بتاتے رہیں گے. اور میں بھی بڑا یادداشت, میری خدا کا شکر ہے, اپنی فیملی سے میں بہت پیار کرتا ہوں. جو نہیں آتا, ماسوسیما نے بڑی چھٹیاں کی تھی, میں کیا میں بھی نہیں اپنی ماں کو کہنا نواں سال مبارک ہو, آوے گی تو میں کہاں گیا. میری بات سنیں, آپ ضرور آئیں. اگر لائک آپ کو کوئی پرابلم ہے, فون پر بھی رابطہ نہیں ہو رہا, آپ کسی کے تھرو خبر پہنچائیں, ہم آپ کے گھر آئیں گے. اگر خبر ہم تک پہنچے گی ہم آ کر دعا کریں گے آپ کی فیملی کے لیے. کبھی تندرستی کے ساتھ بیماری کی آ جاتی ہے تو آپ ضرور ہمیں بتائیں, ہم آئیں گے آپ کے گھر میں, آپ کے لیے دعا کریں گے. لیکن کسی نے اس سال چرچ سے چھٹی نہیں کرنی, خدا اسے بہت برکت دے گا. سال کا جیسے اینڈ ہوگا ہم اس خاندان کو, اس فیملی کو اور ان عزیزوں کو ہم آگے بلائیں گے چرچ کی طرف. پھر ساری کلیسیا کو بتائیں گے کہ اس خاندان نے کبھی چھٹی نہیں کی, حالات کیسے بھی ہیں انہوں نے چھٹی نہیں کی. اور میرا ایمان ہے خدا آسمانوں سے روحانی برکتیں آپ کو عطا کرے.
आमीन। अभी हम खड़े होंगे अपनी अपनी जगह पर और यीशु की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। जिस तरह हमारी बातचीत ये दुआ करेंगे, खुदा का खादिम भी करेगा, आपने भी मेरे साथ करनी है। ये साल जबकि खुदा की खादमा ने पर्सनली उन्होंने लास्ट टाइम दुआ की थी कि खुदावंद ये साल 25 का साल 2025 का साल हमारे लिए रूहानी तरक्की का साल हो, कलीसिया के लिए रूहानी तरक्की का साल हो। हम मांगेंगे भाई अरसलान के लिए खुदावंद रूहानी तरक्की दे, और कुछ नहीं हमें चाहिए, बाकी सारी चीजें खुदा प्रोवाइड करता है। रूहानी तरक्की अजीजों ना पैसों से मिलती है ना ताल्लुक से मिलती है, ये आसमानों से आती है, आसमानों से नाजिल होती है, खुदा देता है और खुदा ब्लेस करता है। जो ही रूहानी तरक्की में हम आते हैं, हर तरह की डिजीज, हर तरह की परेशानी जाती रहती है। हर शख्स दहना जो बाहर है, मेरी आवाज सुन रहे हैं, इतने हाथ मिलकर जब हम खुदा के हुजूर शिफायत करेंगे तो खुदा बड़ा काम करेगा। सारे हाथ प्लीज, कलीसिया हम सब बदन है मसीह का, हम सब मसीह के बदन का हिस्सा है, मुख्तलिफ अज़ू हैं, हम सब, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है। और सब अपना दाहिना हाथ बढ़ाएंगे भाई की तरफ और हम भाई को हॉली ऑयल से यीशु बादशाह अपने बंदा को ब्लेस करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। जीसस, ये हाथ मेरे नहीं बल्कि तेरे हैं। तेरा खादिम मुकम्मल तौर पर अपने आप को पीछे करता है, तुझे आगे करता है। जीसस, तू देख रहा है, तेरा खादिम, तेरी खादमा, सारी कलीसिया हम मिलकर बाप बेटे रूह के नाम से एवेंजलिस्ट अरसलान गिल को जीसस तेरे मज़बा पर हम वेलकम करते हैं और यीशु के नाम से जीसस हम हॉली ऑयल से तेरे बंदा को अनाइंट करते हैं। आज से रूहानी तरक्की आसमानों से तेरे बंदा की जिंदगी में आए। खुदावंद तू ऐसा करने की कुदरत रखता है। प्रेज गॉड, सारे दुआ करेंगे। हालेलुया। बाप बेटे रूह के नाम से खुदावंद ये हाथ मेरे नहीं बल्कि तेरे हैं। जीसस, तू अपने पाक हाथों से अपने बंदा को ब्लेस कर रहा है। खुदावंद तूने हॉली ऑयल से अपने बेटे को ब्लेस किया, बालों से लेकर पांव के तलवे तक तेरा बंदा तेरे लहू के अंदर आ चुका है, तेरा लहू तेरे बेटे के ऊपर ठहर चुका है। पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, हॉली ऑयल से तूने आज अपने बंदा को ब्लेस किया, बालों से लेकर पांव के तलवे तक तेरा पाक खून तेरे बेटे के ऊपर बह रहा है। मैं देख रहा हूँ ये थिक हॉली ब्लड जीसस आसमानों से, हेवन से तेरे बेटे के ऊपर आ चुके हैं और तूने अपनी पाक आग से, पाक मस्सा से, अपने पाक लहू से अपने बेटे को तूने ब्लेस किया। मैं तेरा खादिम सारी कलीसिया के साथ मिलकर, सारी जमात के साथ मिलकर हम बाप बेटे रूह के नाम से बरकत मांगते हैं अपने भाई अरसलान के लिए। दुआ करते हैं जीसस अपने बेटों को आसमानों से खुदावंद रूहानी तरक्की अता कर। तेरा खादिम मज़बा पर ये तुझसे बोलता है, तेरी खादमा के साथ मिलकर, कलीसिया के साथ मिलकर, इन नन्हे बच्चों के साथ मिलकर, बुजुर्गों के साथ मिलकर खुदावंद तेरा खादिम बोलता है रूहानी तरक्की अता कर अपने बेटे को, दिल की विशेष को पूरा कर, दिल की मुरादें पूरी कर, आके तेरा बेटा तुझ में बढ़ता जाए। खुदावंद हम सब जिस्म के अंदर कम होते जाएं और रूह में बढ़ते जाएं, मांगते हैं यीशु के नाम से। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दूस के नाम से आमीन। जी गॉड नाम है। हनी को जब भी हम बोलते हैं तो मीठा हमें याद आ जाता है ना। भाई बहुत अच्छे हैं, खुदावंद ने बड़ी बरकत दे। इनकी शादी नहीं हुई जब से ये अब्दीन जाज चर्च से जुड़े हुए हैं। मेरी माशो आंटी उस्मा चर्च का और इनकी सारी फैमिली चर्च का हिस्सा है और खुदा के खादिम और सारी कलीसिया हम मिलकर प्रेयर करते थे। तो भाई हनी को खुदा ने रूहानी जीवन साथी दिया और ना सिर्फ फिर खुदा ने इन्हें 2 रहने दिया बल्कि 2 से खुदा ने 3 को भी किया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जी प्लीज जी हॉली ऑयल से ब्लेस करने के बाद मैं फेस कलीसिया की तरफ करता हूँ और अभी हॉली ऑयल से इस जोड़े को अनाइंट करेंगे और जीसस ब्लेस करेंगे और फिर ये जोड़ा कलीसिया की तरफ फेस करेगा और सारे कलीसिया फिर हाथ बढ़ाएंगे और इनके लिए दुआ करेंगे। तो क्या नाम सिस्टर रखा है अपने काके का? हिजकियल। जी, हनी को खुदा ने हिजकियल बेटा दिया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं
اور ہم بلیس کریں گے. ہولی آئل سے ہم بلیس کر رہے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم جیسے میں نے کچھ دیر پہلے بتایا, اس کے اندر جیزس نے قوت اور شفا کو رکھا ہے اور بڑا ضروری ہے. لاسٹ ٹائم مس ہو چکا, بیٹے کو بلیس کرنا تھا لیکن نہ ہو چکا, بیٹا بلیس ہو چکا, لیکن آج خدا کی مرضی تھی. مذبح پر خدا کے خادم دعا کریں گے. آپ سب اپنا دانا ہاتھ بڑھائیں, سارے اس طرح دانا ہاتھ کریں, چھوٹے بچے بھی پلیز شرمائے نہ. کسی دن آپ کی بھی باری, تانو جدو اگے بلاواں گے پھر ساری کلیسیا آپ کے لیے بھی ہاتھ کھڑا کرے. لیکن اگر آپ نے ہاتھ نہ بڑھایا تو تاڑے واسطے بھی کسی نے ہاتھ نہیں چکنا. پلیز ساری کلیسیا ہاتھ بڑھائیں. آنکھیں چاہیے آپ کھول لیں, نو پرابلم, لیکن ہاتھ بڑھائیں اس جوڑے کی طرف. اس سے تھوڑا سا آپ کاکی کو آگے لے کر آئیں. ہم باپ بیٹے روح کے نام سے بلیس کریں. خداوند میں تیرا خادم تیری خادمہ, ہم اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں. جیزس تجھے آگے کرتے ہیں. یہ ہاتھ تیرے خادم کے نہیں بلکہ یسوع تیرے ہیں. اور جیزس ابھی تو اپنے لہو سے اس خوبصورت بیٹے کو بلیس کرنے کو ہے. یسوع بادشاہ جی, تو آج اس بیٹے کو اپنے لہو میں مکمل طور پر لینے کو ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. جیزس یہ ہاتھ میرے نہیں بلکہ تیرے ہیں. باپ بیٹے روح کے نام سے جیزس ہم بلیس کرتے ہیں. یسوع بادشاہ جی, تو نے مکمل طور پر ہولی آئل سے مسا سے خداوند بیٹے کو تو نے بلیس کیا. خداوند میں اس کی ماما کو اور اس کے پاپا کو, جیزس یہ ہاتھ تیرے خادم کے نہیں بلکہ یسوع تیرے ہیں. پلیز کلیسیا کی طرف فیس کریں گے. ماں جی کلیسیا کی طرف سارے اپنا دہنا ہاتھ بڑھائیں گے اور ہم دعا کریں گے. ہاللیلویا. قادر مطلق آسمانی باپ, تیرا خادم تیری خادمہ, ہم مل کر باپ بیٹے روح کے نام سے ساری کلیسیا کے ساتھ متفق ہو کر خداوند بھائی ہنی کو, ان کی مسز کو, ان کے بیٹے کو, ان کی فیملی کو یسوع تیرے لہو میں ڈپ کرتے ہیں. آج تیرا لہو اس جوڑے کے اوپر لگا, تو نے خداوند بلیس کر دیا, تو نے بلیس کر دیا اس جوڑے کو. خداوند تو نے بلیس کر دیا. خداوند میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے. تو نے بڑا کام کیا, تو نے ابلیس کو تباہ کیا ہے. وہ ابلیس جو رکاوٹیں پیدا کرتا تھا, آج سے یہ ہنی بھائی کو جو تو نے بیٹا دیا, میری بہن کو جو تو نے بیٹا دیا, آج جیزس یہ جیسے خون و گوشت و ہڈی میں بیٹا بڑا ہوگا, تیرے لہو میں بڑھتا جائے گا, تیرے لہو میں بڑھتا جائے گا. ان زندگیوں پر تیری برکتیں ہمیشہ نازل ہوتی رہیں. مانگتے ہیں یسوع کے نام سے, آمین. تالی بجائیں گے جی, زوردار تالیاں. گاڈ بلیس یو. ہالیلویا. مسیح کے برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. جب میری شادی ہوئی اس کے بعد جب میں خداوند کا فضل میرے پر تھا تو میں بہت زیادہ بیمار تھی, اور پاسٹر جی نے دعا کی تھی تو مجھے خداوند نے بہت خوبصورت بیٹا دیا. میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی, اور میں فرسٹ ماہ سے لے کر لاسٹ ماہ تک اتنی بیمار تھی, اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا. تو جب پاسٹر جی نے دعا دی اور پاسٹر جی سے بات ہوئی تو خداوند نے میری دعا کو سنا اور میرے خدا نے مجھے بیٹا دیا. آمین. زوردار تالیاں. سفید بھائی السلام. بیٹا میرے بیٹے دی جاب نہیں سی کافی دیر تو, تے ہن شکر ہے خدا دا کہ انہوں جاب مل گئی. میں خدا دا شکر کر رہا ہوں, میری بھی جاب لگ گئی. ہاللیلویا. ہم خدا بھائی کی لائف کے اندر خدا نے بے شمار میریکلز کیے ہیں, بے شمار معجزات کیے ہیں. اور جب ڈی بلاک میں ابدی نجات چرچ تھا تب سے بھائی شہری ان کی فیملی ابدی نجات چرچ میں آتے اور خدا کے حضور جھکتے. پچھلے دنوں کچھ ایسا ہوا, کیا نام ہے سسٹر چھوٹے بیٹے کا؟ وائس بیٹا. وائس بیٹا کچھ اتنا بیمار ہو گیا کہ ہاسپٹل بیٹے کو وہ لے گئے, ہاسپٹل والوں نے ایڈمٹ کر دیا اور آخری دم تک بیٹا چلے گیا, آخری سانسوں پر چلے گیا. اور بھائی شہری فون پر خدا کے خادموں کے رابطے میں تھے اور فون پر وہ پرے کرواتے تھے. ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر دوبارہ انہیں جھٹکے لگیں گے, بخار ہو گیا گردن توڑ, اور ڈاکٹروں نے بولا اگر دوبارہ جھٹکے لگے تو بیٹے کی ڈیتھ ہو جائے گی. لیکن جیزس نے وائس بیٹے کو نئی زندگی دی, سلامتی دی. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج آپ کے سامنے ہے یہ ہمارا بیٹا. زوردار تالیاں سارے مارا لیں اس بات سے جیزس کے لیے. پریز گاڈ. ہاللیلویا. کل بھائی شیری کو ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے خدا کے خادم کو فون کیا. کئی دفعہ جب ہمیں شفا نہیں ملتی تو ہم خادموں کے رابطے میں رہتے ہیں,
जो ही हमें शिफा मिल जाती है हम भूल जाते हैं, हम दुआ को भूल जाते हैं। बेसिकली हम खादमों को नहीं भूलते, हम मसीह को भूल जाते हैं। लेकिन कल भाई ने बताया कि अभी छुट्टी हुई है पास्टर जी, सबसे पहले मैंने आपको फोन किया है कि खुदा ने दुआएं सुन ली है, खुदा ने वाइज ये बेटा है, ये जो मेरी बहन ने उठाया, ये बेटा बीमार था। शेरी भाई को खुदा ने 2 खूबसूरत बेटे दिए, एक भाई शेरी ने उठाया है, एक इनकी मिसेस ने, लेकिन जो छोटा बेटा 1 साल का है ये बीमार हुआ था। कल खुदा ने उन्हें मुकम्मल शिफा दी, वो चर्च में आए। भाई ने बोला कि मैं कल चर्च आऊंगा, मिठाई लेकर आऊंगा कलीसिया के लिए, क्योंकि आप और मैं हम मिलकर दुआएं करते हैं। ये भाई शेरी मिठाई लेकर आए हैं सारी कलीसिया के लिए। खुदा ने शिफा दी बेटे वाइस को, और मैं आज ईमान से बोलता हूँ कि ये बेटा हमेशा यस्सु में शिफा में कायम रहेगा। आमीन। हम हॉली ऑयल से ब्लेस करते हैं, इस तरफ फेस करेंगे और हम हॉली ऑयल से दोनों बच्चों को, प्रेज गॉड। ये मैंने जैसे पहले बोला, ये आग बना हुआ है, अभी मैं जब इसे टच करता हूँ तो आग का एक जबरदस्त बहाव ऑयल के अंदर से निकल रहा है। हम बाप बेटे रूह के नाम से ब्लेस करते हैं। खुदावन मैं तेरा खादम, तेरी खादमा, हम अपने आप को पीछे करते हैं और सारी कलीसिया के साथ मिलकर तेरा खादम, तेरी खादमा, हम बाप बेटे रूह के नाम से इस खानदान को ब्लेस करते हैं, हॉली ऑयल से अनाइंट करते हैं और दुआ करते हैं तेरा जलाल इनके ऊपर ठहर जाए। यीशु बादशाह, ये हाथ मेरे नहीं बल्कि जीसस अब तेरे बने हुए हैं, तू अपने हाथों से ब्लेस करने को। जीसस ये हाथ मेरे नहीं बल्कि यस लॉर्ड, खुदावन तूने मुकम्मल तौर पर रूह कुद्स की आग से इन जिंदगियों को खुदावन तूने ब्लेस किया है। खुदावन तेरा लहू इनके ऊपर आ चुका है। कलीसिया की तरफ पेश करेंगे, अभी सारी कलीसिया अपना दाहिना हाथ बढ़ाएगी और हम दुआ करेंगे। पाक खुदा, तूने हॉली ऑयल से अभी इसी वक्त इस खुदावन सारी फैमिली को ब्लेस किया है। बेटे वाइस को तूने शिफा दी, हम तेरा शुक्र करते हैं। और बेटे वाइस के बड़े भाई को भी तूने छुआ, भाई शेरी को, इनकी मिसेस को तूने हॉली ऑयल से ब्लेस किया, हम तेरी सिताइश करते हैं। आज से ये फैमिली यीशु तेरे लहू में डिप हो चुकी है, तेरा लहू इन पर बहता रहे। तेरा खादम सारी जमायत के साथ मिलकर खुदावंद हम इस जोड़े के लिए बड़ी बरकत मांगते हैं, दुआ करते हैं। खुदावंद तो अपने बच्चों को हमेशा ब्लेसफुल रखना, अपने बच्चों को बरकतों में मामूर रखना, बड़ी बरकत देना। तेरा बरकतों वाला हाथ इन जिंदगियों पर बना रहे। आज जितनी जिंदगियों को खुदावंद तूने यीशु बादशाह अपने खादम में से होकर, अपनी खादमा में से होकर, जितनी जिंदगियों को तूने हॉली ऑयल से अनाइंट किया है और मसा से भरा है, तेरा मसा इन जिंदगियों पर हमेशा ठहरा रहे, हमेशा ठहरा रहे। मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम से, आमीन। सारे आंखें बंद करेंगे और इस रोटी में शामिल होने के लिए अपने आप को हम तैयार करेंगे। खुदा आज के ये पाक खुदा में पाक लोक में खुदा शामिल हम सब अपने गुनाहों का करार करते हैं। पाक खुदा की पाक खुदा में पाक खुदा मुबारक नाम सब नामों से आला पाक खुदावन के पाक खुदावन तूने मुझे बोला कमाल करना पाक खुदा। और स्पेशली हम अपने ऊपर यीशु का लहू मांगेंगे, अपने कानों के ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर, अपनी जुबान के ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर हम यीशु का लहू मांगेंगे और कहेंगे, जीसस तू अपने लहू से मुझे ब्लेस कर, ताकि पाक मेज में मेरा शामिल होना बाइस से बरकत ठहरे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं।
जो मसीह के बदन के मुशाबे है, जिसमें अभी हम शामिल होने को हैं। इसी तरह शीरा हम लेंगे, शीरा जो यीशु के खून के मुशाबे है, जिसमें हम ईमान से जब शामिल होते हैं तो जो ये वो शीरा है जो मसीह का लहू बनकर हमारे अंदर काम करता है। इसी तरह हम सब इसमें शामिल होंगे। ये बेटे उठाकर जरा साथ में पढ़ो। मसीह का बदन जो हमारे लिए तोड़ा गया। मसीह का बदन जो हमारे लिए तोड़ा गया। मसीह का बदन जो हमारे लिए हालेलुया। भाइयों में से मैं चाहता हूँ जितने भाई पाक मेज में शामिल होना चाहते हैं वो आगे आ जाएंगे। बाहर भी जो भाई पाक मेज में पाकिशा में शामिल होना चाहते हैं प्लीज आगे आ जाएं। मेरा ईमान है पाक मेज में शामिल होने के सबब से खुदा आपको ब्लेस करेगा। मसीह का बदन जो हमारे लिए तोड़ा गया और मसीह का खून जो हमारे लिए बहाया गया। हालेलुया। मसीह का बदन जो हमारे लिए तोड़ा गया, मसीह का खून जो हमारे लिए बहाया गया। ये मसीह के बदन के मुशाबे है ये रोटी, और ये शीरा मसीह के खून के मुशाबे, मसीह का बदन जो हमारे लिए तोड़ा गया। अगर कोई भाई पाक मेज में शामिल होना चाहता था, रह गया है, तो प्लीज आप आगे आ सकती हैं। मसीह का बदन जो हमारे लिए, मसीह का बदन जो हमारे लिए तोड़ा गया और मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया। अगर कोई रह गया है आप आगे आ सकती हैं। पाक मेज है मौजूद आपके लिए, ये दस्तरखान आपके लिए मौजूद है। अगर कोई रह गया है प्लीज आप बरकत पाए, हमारी जिंदगियों के अंदर ब्लेसिंग्स आए। आज जितनी तेरी बेटियां तेरे बच्चे पाक मेज में शामिल हुए, तेरा मसा तेरा लहू इन जिंदगी पर हमेशा लगा रहे। अपने बच्चों को बड़ी बरकत दे, मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। इसी तरह एक बहन ने भी बोला था, ये हॉली ऑयल इस बात की निशानदही है कि ये अनाइंटिंग ऑयल जिंदगी को रूह में लेकर आएगा। बाप बेटे रूह के नाम से हम इस बेटी को ब्लेस करते हैं। जीसस तेरा बरकतों वाला हाथ इस बेटी के ऊपर बड़ा रहे और तेरा मसा ठहरा रहे। खुदावंद मैं बेटी को, इनकी मामा पापा और उनकी सारी फैमिली को जीसस तेरे लहू में छुपाता हूँ।
तेरा हाथ बड़ा रहे। खुदावंद आज ये बेटी हॉली ऑयल से ब्लेस हुई, जिस तरह ये बेटी बड़े कदो कामत में रूह में ब्लेस होती जाए। खुदावंद बड़ी होकर तेरी खादमा बने। मैं भाई वकास के लिए, मिसेस वकास के लिए बड़ी बरकत मांगता हूँ। सारी कलीसिया के साथ मिलकर हम बरकत मांगते हैं। मैं चाहता हूँ सारी जमायत हाथ बढ़ाएगी, पाकरू की मर्जी के मुताबिक बाजी कलीसिया की तरफ पेश करें। सारी जमायत अपना दाहिना हाथ बढ़ाएगी। खुदावंद मैं तेरी खूबसूरत कलीसिया के साथ मिलकर, तेरा खादम, तेरी खादमा के साथ मिलकर, सारी जमायत के साथ मिलकर बाप बेटे रूह के नाम से हम खुदावंद इस बेटी को तेरी यीशु सलीब के नीचे लेकर आते हैं। आज से तूने इस बेटी को मखसूस कर दिया है कि ये तेरी बेटी है, तेरे लिए बड़ी होगी, तेरे लिए खिदमत करेगी, तेरे लिए जिएगी। मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद बड़ी बरकत दे। तेरी खादमा, सारी कलीसिया, बाप बेटे रूह के नाम से हम ब्लेस करते हैं इस स्वीट को। जीसस तू ब्लेस कर, मोर 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 इसे ब्लेस कर, इसका अजर दे। मेरे भाई शहरी और उनकी फैमिली को अजर दे। खुदावंद ये मिठाई जब जो बेटी बेटा खाए, तेरा लहू बनकर जिंदगी में काम करे। बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। जी बेटा यूसुफ है, ये प्लीज ये पकड़ेगी टिश्यू का। ये बड़े खूबसूरत लम्हे होते हैं जो हम मसीह की हजूरी में गुजारते हैं। मिठाई सबने लेनी है और मेरा ईमान है कि भाई को खुदा ने इसका अजर दे दी है। खुदा उन्हें आपकी बड़ी बरकत दे। और मेरी दरख्वास्त है कि मिठाई सबको मिलेगी। प्रे हो चुकी है, इसके अंदर बरकत और कसरत आ चुकी है। और टिश्यू ज़रूर लें। मिठाई खाने के बाद किसी ने अपने कपड़ों से हाथ नहीं लगाने, आपने टिश्यू लेना है। टिश्यू आप तक पहुंच रहा है, ये टिश्यू बेटे ले लें। इसमें से टिश्यू आपने खुद ले लें। जी मैं पाक शराकत आप तक पहुंचाता हूँ। जी सिस्टर प्रिया जरा प्लीज आए, जरा खिदमत अंजाम के लिए तुझसे बरकत मांगते हैं। खुदावंद तेरे बच्चे बड़ी मोहब्बत से तेरे हजूर आए, तूने एक एक जिंदगी को छुआ है और बरकत दी है। खुदावंद कल शाम की शिफाया इबादत में हम सबको आने का फजल अता करना। पाक खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि जीसस तूने एक बार फिर से आज अपने कलाम से तूने हमें ब्लेस किया और हमें ये सिखाया कि हमने किस तरह तुझ में बढ़ना है। पाक खुदा जितने तेरे बच्चों को हॉली ऑयल से अनाइंट किया गया, एक एक जिंदगी पर तेरा मस्सा ठहरा, सारी जमायत के ऊपर तेरा मस्सा ठहरा। मैं तेरा खादम, तेरी खादमा के साथ मिलकर सारी अब्दी नजात चर्च की कलीसिया के लिए हम बरकत बोलते हैं। कल शाम को शिफाई इबादत में अपने बच्चों को आने का फजल अता करना, बड़ी बरकत देना। मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। बरकत के अल्फाज खुदा की खादमा अदा करेगी। हालेलुया। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमायत के साथ और तमाम मुक़द्दसीन के साथ, और खुदावंद तेरे ममसू के साथ, और खुदावंद तमाम बनी इस्राएल कौम के साथ हमेशा 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 तक होती रहे, आमीन।
खुदा बड़ी बरकत। भाई ये कोई बच्चा लग कर चेयर जरा बकास भाई उठाए ताकि हमारी बेटियां यहाँ से खुदा बेटे बड़ी बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। थोड़ी सी जगह इधर शुरू करो ना ऐसे, इधर फोकस दरवाजे पे फोकस। हाँ जी मैंने टैप भी पकड़ी, मैंने टैप भी पकड़ा।